بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق الدرس الرابع، یعنی کہ 4واں سبق۔ 4ویں سبق کا کچھ مفردات ہیں، کچھ ضمیریں ہیں، کچھ اسماء مؤنث ہیں، کچھ اسماء مذکر ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کا اسی حساب سے اس میں ترجمہ دیکھیں گے۔ دیکھیے، انتی کا معنی تو، یہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ انتا مذکر کے لیے، انتی مؤنث کے لیے۔ انتی کا معنی تو، ہوا مذکر کے لیے آتا ہے، ہوا کا معنی وہ۔ ہیا مؤنث کے لیے آتی ہے، اس کا معنی بھی ہے وہ۔ بنتن کا معنی لڑکی، امن کا معنی ماں، ابن کا معنی والد باپ، اخن کا معنی بھائی، اختن کا معنی بہن، قویٌ کا معنی طاقتور، ضعیفٌ کا معنی کمزور، سمین کا معنی موٹا، حزیلۃ کا معنی دبلا، ذکیۃ کا معنی ہوشیار، چست، ذہین۔ اب دیکھیں جملوں کے ساتھ۔ انتی بنتن، تو ایک لڑکی ہے۔ انتا صغیرۃ، تو چھوٹی ہے۔ انتی صغیرۃ، تو چھوٹی ہے۔ ہذہ امن، یہ ماں ہے۔ ہیا کبیرۃ، وہ بڑی ہے۔ ہذہ نافذۃ، یہ کھڑکی ہے، روشن دان ہے۔ النافذۃ مفتوحۃ، اور روشن دان کیا ہے؟ مفتوحۃ، کھلا ہوا ہے۔ ہیا صغیرۃ، وہ چھوٹا ہے۔ تلکا ستارۃ، تلکا معنی وہ، ستارۃ کا معنی پردہ، وہ پردہ ہے۔ الستارۃ جدیدۃ، پردہ جدید کا معنی نیا، پردہ نیا ہے۔ ہیا جمیلۃ، وہ خوبصورت ہے۔ جمیلت کا معنی خوبصورت، وہ خوبصورت ہے۔ البیت صغیر، البیت کا معنی گھر، صغیر کا معنی چھوٹا، گھر چھوٹا ہے۔ ہوا جمیل، وہ خوبصورت ہے۔ الحجرۃ صغیر، حجرہ معنی روم، صغیر معنی چھوٹا۔ الحجرۃ صغیرۃ، حجرہ چھوٹا ہے۔ ہیا جمیلۃ، وہ خوبصورت ہے۔ الاب ذاہب، باپ جا رہا ہے۔ ذاہب کا معنی جا رہا ہے، جانے والا ہے۔ اب ان کا معنی باپ، باپ جا رہا ہے یا جانے والا ہے۔ الام ذاہبۃ، ماں جا رہی ہے۔ الاخ نائم، بھائی سو رہا ہے۔ الاخ کا معنی بھائی، نائم معنی سو رہا ہے، سونے والا، بھائی سو رہا ہے۔ الاخت کا معنی بہن، نائمۃ معنی سو رہی ہے، بہن سو رہی ہے۔ اب دیکھیں، الولد حاضر، لڑکا حاضر ہے۔ البنت غائبۃ، لڑکی غائب ہے، غیر حاضر ہے۔ الولد غائب، لڑکا غائب ہے، غیر حاضر ہے، مطلب اس کا معنی غیر حاضر یا غائب دونوں، ٹھیک ہے، لڑکا غائب ہے۔ البنت حاضرۃ، لڑکی حاضر ہے۔ اب دیکھیں، انا قوی، انا کا معنی میں، قوی معنی طاقتور، میں طاقتور ہوں۔ انتا ضعیف، انتا کا معنی تو، ضعیف کا معنی کمزور، تو کمزور ہے۔ ہوا سمین، ہوا کا معنی وہ، سمین معنی موٹا، وہ موٹا ہے۔ ہیا حزیلۃ، وہ دبلی ہے۔ یا کا معنی وہ مؤنث کے لیے، حزیلۃ معنی دبلی، وہ دبلی ہے۔ انتی ذکیۃ، تو ہوشیار ہے۔ اب یہاں سوال کر رہے ہیں من نائم سے، ٹھیک ہے؟ من کا معنی کون، نائم معنی سو رہا ہے، کون سو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں الاخو نائم، بھائی سو رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کیف البیت، بیت کا معنی گھر، کیف معنی کیسا، گھر کیسا ہے؟ کہہ رہے ہیں البیت صغیر، گھر چھوٹا ہے۔ من نائمۃ، کون سو رہی ہے؟ ابھی اوپر بول رہے تھے مذکر کے لیے کون سو رہا ہے، من نائم، اب نیچے من نائمۃ یعنی کون سو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں الاخت نائمۃ، بہن سو رہی ہے۔ کیف الحجرۃ، کہہ رہے ہیں حجرہ کیسا ہے؟ کہہ رہے ہیں الحجرۃ صغیرۃ، روم چھوٹا ہے۔ حجرہ کا معنی روم، روم کیسا ہے؟ الحجرۃ صغیرۃ، روم چھوٹا ہے۔ پھر سوال، حل البیت کبیر، کیا گھر بڑا ہے؟ حل کا معنی کیا، بیت معنی گھر، کبیر معنی بڑا، کیا گھر بڑا ہے؟ کہہ رہے ہیں لا، نہیں، البیت صغیر، گھر چھوٹا ہے۔ حل الحجرۃ صغیرۃ، کیا روم چھوٹا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں نعم، ہاں، الحجرۃ صغیرۃ، روم چھوٹا ہے۔ اب یہ تمرین ہے سبق نمبر 4 کی
तमरीन है, इनसे आगे पीछे दाएं बाएं जो है वो जुमले रखे जाएंगे। अना मैं, मतलब अब मैं क्या हूँ, तो वो आप लगाएं इसमें। जैसे अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। अंता मुदर्रिसुन, तू मुदर्रिस है। हुवा अखुन, वो भाई है। या और कुछ भी लगा सकते हैं इस तरीके से। हुवा जमीलुन, वो खूबसूरत है, ठीक है, इस तरीके से। और हिया जमीलतुन, वो खूबसूरत है। अंती बिनतुन, तू लड़की है। अना नाइमुन, मैं सो रहा हूँ। अंता मसरूर, तू खुश है। इस तरीके से ये तमरीन पूरा कर देना है। अद-दर्सुल खामिस, पाँचवां सबक। पाँचवें सबक में आप एक जुमला पढ़ेंगे कि जिसमें नकरा का तर्जमा लगेगा, और वही जुमला डबल दिया हुआ है थोड़ा चेंज करके, यानी उसी को फिर दूसरे जुमले में मारिफा बनाया गया है, तो उसके हिसाब से माना लगाना है। जैसे पहले मुफरद पढ़ लीजिए। फ़िल फसली, फसल का माना क्लास, फ़ी का माना में, क्लास में। फ़िल हुजरती, फ़ी का माना में, हुजरत माने रूम, रूम में। फ़िल बैती, फ़ी का माना में, बैत का माना घर, फ़िल बैती घर में। फ़िल मस्जिदी, मस्जिद में। लिल वलादी, ली का माना लिए आता है, ठीक है, लड़के के लिए। लित तिलमीज़ी, शागिर्द के लिए। लिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस के लिए। लिल रजूली, आदमी के लिए। अब देखें, अलल कुर्सी, ये कुर्सी पर, अला का माना पर, अलल कुर्सी, कुर्सी पर। अलल नाफिज़ती, नाफिज़ माना खिड़की, अला माने पर, खिड़की पर। अलल मकतबी, डेस्क पर, मकतब माना डेस्क, अला माने पर, डेस्क पर। अब देखें, ये नकरे का जुमला आएगा, नकरा का। फ़िल फसली तिलमीज़ुन, ठीक है, ये नकरा के ऊपर वाली लाइन में नकरा के जुमले हैं। देखिए, फ़िल फसली तिलमीज़ुन, क्लास में एक शागिर्द है, ठीक है। नकरा में, नकरा की पहचान क्या है? तिलमीज़ुन ये नकरा है, उसकी पहचान क्या है? इसमें अलिफ लाम दाखिल नहीं है। फ़िल फसली तिलमीज़ुन, तो क्लास में एक शागिर्द है। अलल कुर्सी, कुर्सी पर। वलदुन, एक लड़का है। अलल नाफिज़ती सितारतुन, सितारतुन, खिड़की पर एक पर्दा है। अब नीचे जो है ये मारिफा के हैं, ठीक है, मारिफा के जुमले हैं, तो इसमें जो है वो एक या कोई नहीं लगेगा, ठीक है, एक या कोई का माना नहीं लगेगा, बल्कि डायरेक्ट कहा जाएगा अत-तिलमीज़ु फ़िल फसली, शागिर्द क्लास में है। अल वलदु अलल कुर्सी, लड़का कुर्सी पर है। अस-सितारतु अलल नाफिज़ती, पर्दा खिड़की पर है। लित तिलमीज़ी किताबुन, शागिर्द के लिए एक किताब है। अब ये फिर नकरा के आगे, लित तिलमीज़ी, शागिर्द के लिए, किताबुन, एक किताब है। लिल मुदर्रिसी, मुदर्रिस के लिए, कलमुन, एक कलम, मुदर्रिस के लिए एक कलम है। लिल मस्जिदी, मस्जिद के लिए, बाबुन, एक दरवाज़ा है, मस्जिद के लिए एक दरवाज़ा है। देखें, अल किताबु लित्तिलमीज़ी, किताब शागिर्द के लिए है। अब ये मारिफा के जुमले हैं, मतलब एक लाइन नकरा किया तो एक मारिफा की। अब ये मारिफा आ गया। अल किताबु लित्तिलमीज़ी, किताब शागिर्द के लिए है। अल कलमु लिल मुदर्रिसी, कलम मुदर्रिस के लिए है। अल बाबु लिल मस्जिदी, दरवाज़ा मस्जिद के लिए है। ऊपर एक का तर्जमा लग रहा था और इसमें डायरेक्ट, ठीक है। अब मुहादसतुन, ये गुफ्तगू है, थोड़ी सी गुफ्तगू सीखें, क्योंकि ये किताब गुफ्तगू सिखाने के लिए ही इसका मकसद है, मेन मकसद जो है। ऐना तिलमीज़ो, ऐना का माना कहाँ? तिलमीज़ माने शागिर्द, शागिर्द कहाँ है? तो कह रहे हैं अत-तिलमीज़ु फ़िल फसली, शागिर्द क्लास में है। कह रहे हैं मन फ़िल फसली, कह रहे हैं क्लास में कौन है? मन का माना कौन? फ़िल फसली, क्लास में, क्लास में कौन है? कह रहे हैं फ़िल फसली, क्लास में तिलमीज़ुन, एक शागिर्द है। ये नकरा। माज़ा अलल नाफिज़ती, खिड़की पर क्या है? कह रहे हैं अलल नाफिज़ती, खिड़की पर सितारतुन, एक पर्दा है। कह रहे हैं ऐना सितारतु, ऐना का माना कहाँ? सितारा माना पर्दा, पर्दा कहाँ है? अस-सितारतु अलल नाफिज़ती, पर्दा खिड़की पर है। माज़ा अलल मकतबी, मा का माना क्या? अल्लाह का माना पर, मकतब माने डेस्क, डेस्क पर क्या है? कह रहे हैं अलल मकतबी, डेस्क पर किताबुन, एक किताब है। व कलमुन, एक कलम है। व दवातुन, और एक दवात है। हल लिल वलदी कुर्रासतुन, क्या लड़के के लिए एक कॉपी है? कह रहे नाम, हाँ। लिल वलदी, लड़के के लिए, कुर्रासतुन, एक कॉपी है, हाँ, लड़के के लिए एक कॉपी है। कह रहे हैं हल कुर्रासतु लिल वलदी, क्या लड़के के लिए कॉपी है? ये जो है वो मारिफा के जुमला है, पहले वाला नकरा का था। क्या लड़के के लिए कॉपी है? नाम, हाँ, लड़के के लिए। अल कुर्रासतु लिल वलदी, लड़के के लिए कॉपी है, हाँ, लड़के के लिए कॉपी है, ठीक है। और इसके अलावा और भी इसकी तमरीन है। अना, जैसे अब अना आप लिख लें कि अना
जालिसुन अला कुर्सी, में कुर्सी पर बैठा हूँ। या अंता फिल फसली, तू क्लास में है, ठीक है। अंती फिल मस्जिदी, तू मस्जिद में है। इस तरीके से जुमले बना देना। हुवा फिल मदरसती, वो मदरसे में है। इस तरीके से ये तमरीन को करना है। और नीचे वाली तमरीन में भी इसी तरीके से जो है वो भरना है, ठीक है। जैसे अल वलदु फिल बैती, लड़का घर में है, ठीक है। अर्रजुलु अल कलमु अलल मकतबी, कलम मकतबी डेस्क पर है। इस तरीके से भरना है, ठीक है। और ये नंबर 3 की जो तमरीन है इसका तर्जुमा करना है। हादिहिल हुजरतु, ये कमरा है। फी हादिहिल हुजरती, इस हुजरे में यानी इस रूम में। इस तरीके से तर्जुमा करना है। तमरीन नंबर 2 में सवाल है। मादा फिल हुजरती, हुजरे में क्या है, तो इसका अरबी में जवाब लिख के लाना है। मन फिल फसली, क्लास में कौन है, इसका भी जवाब इस तरीके से लिख के लाना है। अदरसुस सादिस, छठा सबक जो है फिर इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे अगली वीडियो में।